ایک صندوق جو آسمان سے آیا، جو انبیاء کے ہاتھوں سے گزرا، جس کے اندر اللہ کی نشانی تھی اور جس کے کھو جانے پر ایک پوری قوم برباد ہو گئی۔ آج ہم بات کریں گے تابوت سکینہ کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی روایات بتاتی ہیں کہ اس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ فرشتے ایک صندوق لے کر آئے جسے تسبیح، تبرکات اور آسمانی نشانیوں سے بھرا گیا۔ یہ صندوق نسل در نسل منتقل ہوتا گیا، حضرت آدم علیہ السلام سے شیش علیہ السلام تک، اور حضرت شیش علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک، اور حضرت نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسحاق علیہ السلام تک، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام تک، یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے نبیوں کے پاس۔ یہ صندوق آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مشہور ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت ملی تو بنی اسرائیل فرعون کے ظلم میں تھے۔ یہ سب مبارک چیزیں بعد میں تابوت سکینہ میں رکھ دی گئی۔ تابوت بنی اسرائیل کے لیے اللہ کی نشانی، ایمان کا مرکز اور دل کا سکون اور جنگ کی جیت اور اللہ کے ساتھ تعلق کی علامت بن گیا۔ قرآن نے فرمایا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہے۔ سکینت کیا تھی؟ فرشتوں کا اترنا، ایک نورانی طاقت جو پورے لشکر کو سکون دیتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ اور موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں کا حصہ اور ہتھیار جو انبیاء نے استعمال کیے۔ تابوت کی کنجی جسے کاہن مقدس سمجھتے تھے۔ سکینت یعنی فرشتوں کا اترنے والا نور۔ یہ سب تفصیلات، تفاسیر اور متعدد قدیم روایتوں میں ملتی ہیں۔ جب تابوت ان کے ساتھ ہوتا تو لشکر کے دل مضبوط ہوتے اور ایمان تازہ اور نافرمانی کم ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ دشمن خوف زدہ ہوتے تھے۔ تابوت کو آگے رکھ کر وہ میدان جنگ میں جاتے، فرشتے نیچے اترتے اور بنی اسرائیل کو فتح ملتی۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے بابرکت دور تھا۔ لیکن وقت بدلنے لگا۔ بنی اسرائیل میں سرکشی، ضد، انبیاء کی نافرمانی اور دنیا کی محبت اور بت پرستی کے اثرات پھیل گئے۔ انہیں یقین تھا کہ تابوت ہمارے پاس ہے، اس لیے ہم کبھی نہیں ہاریں گے۔ انہیں لگنے لگا کہ تابوت سے فتح ملتی ہے، اللہ سے نہیں۔ یہی ان کی بربادی کا آغاز تھا۔ قوم عمالقہ ایک طاقتور، بہادر اور غیر رحم قوم تھی۔ انہوں نے بنی اسرائیل پر زبردست حملہ کیا۔ بنی اسرائیل شکست کے دہانے پر تھے۔ انہوں نے کہا، تابوت لاؤ، تابوت آئے گا تو جیت ہماری ہوگی۔ تابوت کو جنگ کے میدان میں لایا گیا، مگر قوم گناہوں میں ڈوب چکی تھی۔ اللہ کی مدد نہیں آئی۔ قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل کو شکست دی، ہزاروں کو مارا، اور سب سے بڑا حادثہ یہ ہوا کہ تابوت چھین لیا گیا۔ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ وہ دن تھا جو ان کی تاریخ کا سب سے سیاہ دن بن گیا۔ قوم عمالقہ اس مقدس صندوق کو لے کر اپنے شہر پہنچے۔ انہوں نے اسے اپنے سب سے بڑے بت داجون کے سامنے رکھ دیا، لیکن صبح جب وہ آئے تو بت گر پڑا تھا، سر الگ اور ہاتھ الگ۔ انہوں نے دوبارہ کھڑا کیا، دوسری صبح پھر گرا ہوا، اور اب کے پورا ٹوٹا ہوا۔ ساتھ ہی پورے شہر میں خوفناک بیماریاں، سوجنے والی عجیب بیماری شروع ہو گئی۔ عمالقہ سمجھ گئے، یہ صندوق انسانوں کے لیے نہیں، یہ آسمانی چیز ہے۔ عمالقہ نے تابوت کو بیل گاڑی پر رکھا اور دعا کی، اے آسمان کے خدا، اسے جہاں لے جانا چاہے لے جا۔ بیل بغیر کسی انسان کے سیدھے بنی اسرائیل کی سرزمین کی طرف چل پڑی۔ یہ وہ منظر تھا جسے دیکھ کر بنی اسرائیل رو پڑے، سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر کیا۔ دوبارہ تابوت کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ تابوت واپس آ گیا تھا، لیکن قوم ابھی بھی گمراہی میں تھی۔ تابوت تو واپس آیا، مگر قوم کا اخلاق تباہ،
बादशाहत कमजोर और दुश्मन ताकतवर हो गए थे और ताबूत अब उनके पास भी हो तो सकीनत नहीं उतरती थी। वहीं से उनकी क़यादत एक खास नबी के जरिए दोबारा शुरू होती है। वहीं से उनकी क़यादत एक खास नबी के जरिए दोबारा शुरू होती है। ताबूत तो वापस आ गया, लेकिन कौम का दिल अभी भी गुनाहों में डूबा हुआ था। बादशाहत टूट चुकी थी और दुश्मन चारों तरफ थे और बनी इसराइल एक कमजोर मुंतशिर कौम बन चुकी थी। ऐसे वक्त में अल्लाह ने एक नबी को मबूस फरमाया। वो कौम को बार बार समझाते, संभालते और राह हिदायत की तरफ वापस बुलाते। एक दिन कौम कहने लगी, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो, हम अल्लाह की राह में जंग करेंगे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे डर है कि जब तुम्हें जंग का हुक्म दिया जाएगा तुम पीछे हट जाओगे। मगर पूरी कौम यकज़बान होकर बोली, नहीं, हम तैयार हैं। और यहाँ से ताबूत सकीना की असल वापसी की दास्तान शुरू होती है। अल्लाह ने बादशाह के तौर पर जिसे मुंतखब किया वो था तालूत। बनी इसराइल चौंक गए। क्यों? तालूत अमीर नहीं था, न मशहूर नस्ब का था और खानदान भी बड़ा नहीं था और ज़ाहिरी दौलत भी नहीं थी। तो कौम ने एतराज किया, हम पर ही कैसे बादशाह हो सकता है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ने उसे तुम पर चुना है क्योंकि उसमें दो सिफात हैं, बेपनाह इल्म और बेमिसाल ताकत। फिर नबी ने एक मौजिज़ा बताया। उसकी बादशाहत की निशानी ये है कि ताबूत सकीना खुद चलकर उसके पास आ जाएगी। ये वो लम्हा था जब ताबूत सकीना का दूसरा बड़ा मौजिज़ा जाहिर हुआ। रात का वक्त, बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे बंद थे और खामोशी छाई हुई। तो अचानक दूर से चरखियों की आवाज आई और फजर के वक्त लोगों ने देखा कि वही बैलगाड़ी जो कई सौ मील दूर से लाई गई थी अब तालूत के दरवाजे के सामने खड़ी थी। दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और ताबूत अंदर दाखिल हुआ और तालूत के कदमों के सामने रुक गया। ये उस बात की निशानी थी कि अल्लाह ने तालूत को बादशाह बनाया और ताबूत सकीना दोबारा कौम के हाथ में आई। सकीनत के आसार वापस आने लगे। ये मंजर पूरे बनी इसराइल के ईमान को हिला गया। तालूत अपनी फौज को लेकर दुश्मनों के मुकाबले के लिए रवाना हुआ। रास्ते में एक शदीद गर्म और प्यासा सहरा था। अल्लाह ने तालूत के जरिए एक बड़ी आजमाइश रखी। तालूत ने कहा, मैं तुम्हें एक दरिया के पास आजमाऊंगा, जो उसका पानी पिएगा वो मेरे लश्कर में नहीं रहेगा। सिर्फ वो लोग साथ रहेंगे जो एक चुल्लू से ज्यादा नहीं पिएंगे। फौज दरिया पर पहुंची। अक्सर लोग प्यास से मजबूर होकर पी गए। सिर्फ चंद सच्चे लोग सिर्फ एक चुल्लू पानी लेकर आगे बढ़े। ये चंद लोग ही असल लश्कर थे। उनमें एक नौजवान भी थे, दाऊद अलैहिस्सलाम। उससे एक अजीम मौजिज़ा जुड़ा था। दूसरी तरफ दुश्मन खड़ा था, जालूत, एक खौफनाक, बहुत बड़ा और ताकतवर जंगजू। उसके हाथ में निहायत भारी नेजा, लोहे का जिरा और लाखों का लश्कर था। बनी इसराइल का दिल लरस गया, लेकिन वो चंद मुखलिस लोग जो दरिया की आजमाइश में पूरे उतरे बोले, इतनी ही छोटी फौजें अल्लाह के हुक्म से बड़ी फौजों को शिकस्त दे देती हैं। ये ईमान का सबसे बड़ा जुमला था। तालूत ने ऐलान किया, जो जालूत को कत्ल करेगा मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा और अपनी बेटी भी उसके निकाह में दूंगा। कौम में सन्नाटा छा गया। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, हाथ में एक सादा गुले और चंद पत्थर। सबने कहा, ये दुश्मन से कैसे लड़ेगा? लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर भरोसा किया। उन्होंने अपना गुल्ला चलाया, पत्थर निकला और जालूत की खोपड़ी के दरमियान जा लगा। वो जमीन पर गिरा और पूरी फौज भाग गई। ये वो दिन था जब बनी इसराइल को अजीम फतह मिली। तालूत की बादशाहत मजबूत हुई और दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी बदल गई। ताबूत सकीना की सकीनत पूरी कौम पर उतर आई। ये फतह ताबूत की वापसी के बाद पहली बड़ी निशानी थी। कुछ साल बाद दाऊद अलैहिस्सलाम नबी भी बने और बादशाह भी। उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को मजबूत किया, अदल की हुकूमत कायम की
अल्लाह की किताब पर कौम को वापस लाए। ताबूत सकीना अब हर जंग के साथ निकलता और अल्लाह की मदद आती। दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम आए। दुनिया की सबसे अजीम हुकूमत, सबसे मजबूत सल्तनत, जिन्नात, हवाएं, परिंदे सब उनके ताबे थे और ताबूत सकीना उनकी बादशाहत की बरकत थी। जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम का जमाना खत्म हुआ, कौम दोबारा गुमराह हुई और बाहमी जंगे, बुत परस्ती और जुल्म और अहकाम इलाही की खिलाफ वर्जी और जिना, शराब सब आम हो गए। ताबूत सकीना की बरकत उठने लगी और अल्लाह ने हुक्म दिया, फरिश्तों ने ताबूत को जमीन से उठा लिया। ये सबसे मजबूत कौल है। ताबूत आसमानी हिफाजत में चला गया। उसके बाद बनी इसराइल पर पुख्ते नसर का हमला हुआ। फलस्तीन की तबाही और हजारों कत्ल और बैतुल मुकद्दस की बर्बादी, पहले से ज्यादा सख्त अजाब आए। ताबूत ना रहा तो बरकत भी ना रही। यहूदी कहते हैं कि जब ताबूत मिल जाएगा तो तीसरी इबादत गाह बनेगी और खोई हुई सल्तनत दोबारा कायम होगी। इसीलिए इसराइल खुफिया तौर पर खुदाइयाँ कर रहे हैं, मस्जिदुल अक्सा के नीचे सुरंगें बना रहे हैं। मगर इस्लामी अकीदा कहता है ताबूत सकीना अब सिर्फ हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के जमाने में जाहिर होगा। वो उसे जमीन से निकालेंगे और यही वो निशानी होगी। आखिरी दौर की बड़ी तब्दीली शुरू हो चुकी है। उस वक्त तक इसराइल चाहे जमीन छान ले, ताबूत उन्हें नहीं मिलेगा। इस हकीकत को तारीख ने कभी नहीं भूला। ताबूत सकीना की दास्तान हमें ये बताती है कि अल्लाह की मदद चीजों में नहीं, दिलों की नेकी और आमाल में होती है। बनी इसराइल के पास ताबूत था, मगर जब वो गुमराह हुए तो बरकत छीन ली गई। आज भी यही कानून है। जब दिल अल्लाह से जुड़ेंगे, सकीनत खुद उतर आएगी और वो दिन जरूर आएगा जब ताबूत सकीना फिर जाहिर होगा, दुनिया की तारीख बदल देगा। ये है ताबूत सकीना की मुकम्मल दास्तान। अस्सलामु अलैकुम।